truckers, taxi and bus operators have started a nationwide strike to oppose the provision of ₹7 lakh penalty and 10-year jail term for hit-and-run cases under the newly passed Bharatiya Nyaya Sanhita. The All India Motor Transport Congress says that these provisions, which have yet to come in force, can lead to undue harassment and must be recalled. Over 70% of the estimated 1.20 lakh trucks, tempos and containers in the Mumbai metropolitan region in particular have remained off the roads on Monday, and the 3-day strike is likely to impact the distribution of fuel and hit fruits and vegetable supplies in the coming days. Meanwhile, let us in fact listen in to some of the reactions of truck drivers who are protesting from different locations. जाम किए हुए आप लोग? हम लोग के साथ जो 7 लाख मुआवजा और 10 साल ड्राइवर को जेल जो दे रहा है, इसी के काला कानून के खिलाफ हम लोग जाम किए हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार अपना काला कानून वापस ले, जो सजा है उसको खत्म करे। अगर नहीं लेगी तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग बंद रखेंगे। 3 दिन का टाइम दिया है सरकार को, अगर नहीं मानता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आप लोग नए कानून से खुश नहीं है? नहीं खुश, एकदम खुश नहीं। इसलिए रोड जाम किए हुए आप लोग? नया कानून आया है कि 10 साल का सजा है और फाइन है। गरीब आदमी उतना पैसा कहाँ से देगा? 7 लाख रुपया फाइन है, 7 लाख रुपया कहाँ से देगा? इसीलिए जाम है। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि कानून वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? जाम रहेगा और क्या होगा? इसलिए रोड जाम है। रोड जाम है। हम लोग ड्राइवर क्लास में एक्सीडेंट होने को मुआवजा देना पड़ेगा। जेल होगा 10 साल से। गरीब आदमी कहाँ से करेगा बताइए? कहाँ से 10 लाख देगा? My colleagues have also filed several ground reports from various locations and have spoken with the protesters. Let's also quickly take a look at these. After news of a 3-day strike extended by the tanker association that flashed in the media, you can see that how long queue of petrol, the vehicles that have started, here on the petrol pumps, because people, those who came to know that authority, tanker association have extended their strike, they started reaching the petrol pump, and this is the situation that people are facing on the petrol pump, and long queue of the vehicles, 2-wheelers and 4-wheeler everywhere. Wherever you see that people can see, and people those who were even at home, they started rushing to the petrol pump so that they can fill their vehicle and can survive for survive for next few days if there is a crisis, petrol and the diesel crisis. Just see the pictures over here from the Jammu city. Definitely it's a matter of concern for the people, because they know that if there will be no fuel in the vehicle, they will not be able to move anywhere. And not only the people, but also the transport will not be able to move. So that is going to be a challenging in the coming time. So people are rushing to the petrol pumps. आप भी तेल डलवाने आए हो, क्या वजह क्या है, क्या सुना है आपने? हाँ जी, सुना क्या है, क्यों आए, रश क्यों है, क्या बता रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या भीड़ इतनी है, क्या वजह, क्या बता रहे हैं? वजह सरकार को पता होनी चाहिए कैसे भीड़ डली है और लोगों को कैसी परेशानी हो रही है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपने क्या सुना है? सुना यही है कि ट्रक वालों ने जाम करके रखा है कि इंश्योरेंस के बगैर, मतलब जो बंदा ड्राइविंग करते समय किसी की डेथ हो जाए या जुर्माना भरना पड़े, इतना जुर्माना रख दिया कि वो गरीब बंदा क्या करे। 500 रुपये दिहाड़ी लगाने जाता है वो, तो इतना जुर्माना कहाँ से भरेगा? और इतनी साल यहाँ पेट्रोल पंप पे इसलिए रश है कि शॉर्टेज हो जाए। हाँ जी, ये शॉर्टेज होने की वजह से ही ये लोगों को परेशानी पड़ गई है कि पेट्रोल पंप में कभी तेल ना खत्म हो जाए तो हमारी गाड़ी में हम दिहाड़ी लाने जाना होता है तो कहाँ से जाएंगे? These are the reason that people are rushing to the. Let's speak to some other people. मैम, आप भी आए हैं, क्या सुना है आपने भी? सर यही सुना कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म होने वाला, जल्दी जल्दी जाओ भरवा लो। बट जो भी है लॉ सोच समझ के निकालना चाहिए। ऐसे कोई भी लॉ उठा के आप लोगों पे थोप देते हो, पहले उसको जमीनी लेवल पे देखो उसका क्या असर होने वाला है, क्या नहीं। बात तो सही है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर की गलती होती है, कभी नहीं होती है, ठीक है। और ज्यादातर मैंने देखा है हम लोग जो लाइसेंस स्कूटीज पे लेते हैं ना, हमसे ज्यादा अच्छी ड्राइव ट्रक ड्राइवर करते हैं, ठीक है। गलती ज्यादातर उनकी नहीं होती, आम पब्लिक की होती है, ठीक है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं पे इतना बड़ा 10 साल की सजा, जहाँ उनके लिए कोई आप करो, कोई पॉलिसी करवाओ, कोई उनके बाद उनको इशू कि ये जल्द ये खत्म होगा क्राइसिस?
होना तो चाहिए, नहीं तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी हमारी। They are saying that not only government decision or implementing law is something which they should have thought about it, but at present the situation seems to be very tense here in everywhere in Jammu, and you could see that how people, those who were basically at home, they came to know that there is a crisis, there is a shortage of petrol and the diesel in Jammu and Kashmir. They started rushing towards the petrol pump, and that is what exactly is happening here in Jammu because of a shortage of fuel in the petrol pump. So that's why this is happening. With Bunty D. Rajesh and News X, Jammu. After Jammu and Kashmir Oil Tanker Association, they have extended strike for the 3 days. The petrol and the diesel crisis have erupted here in the Jammu, and you could see that how the people in large number, they have started reaching the petrol pump to fill their vehicles so that they will, they will not face any crisis because of the ongoing situation. According to information, about 50 to 60% petrol pumps and that went dry, and that's why you could see that the people, those who came to know that there will be no petrol and diesel in the pumps in last few days, then they started reaching here at the petrol pump so that they can refuel their vehicles and they can survive even if there is no petrol and diesel in the petrol pumps. Let's we'll speak to some people over here that what they have to say. क्या कह रहे हैं, वजह क्या है इतनी भीड़ की? वो पता नहीं। तो अभी बता रहे हैं पेट्रोल पंप बंद होने? नहीं होने बंद। आप भी तेल भरवाने हैं, रश बड़ा देख रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये बोल रहे हैं कि तेल की कमी आ सकती है, इसलिए। तो आप इसलिए आए भरवाने के लिए? हाँ, इसलिए आए भरवाने के लिए, और क्या? See, they are saying that basically they heard that there are possibility that there will be shortage of petrol and diesel, and that's why they have started reaching. You could see that long queue of vehicle, and everybody is rushing towards the petrol pump so that they can fill their vehicle. They are carrying the containers with them so that if they can save or some diesel or petrol over here. Let's speak to the people over here. There, सर कितने दिन का तेल बचा हुआ है आपके पास? क्या अभी तक देते हैं? 3 या 4 बजे तक, बड़े मुश्किल से। आज ही खत्म हो जाएगा? हाँ। तो क्या बता क्या रहे हैं कि वजह क्या है, पीछे से सप्लाई क्यों नहीं आ रही? वजह यही है कि वो ट्रक का कोई चला, उनका आपस में कोई सजा के बारे में पता नहीं क्या है, तो कुछ उनका अपना सजा होनी है, और कुछ ये बताया कि उनको 5 लाख तक की जुर्माना भी हो सकता है। तो उसी वजह से ट्रक यूनियन वगैरह जो भी है, खास करके पहले इन्होंने क्या किया है, इसके जो भी डंपर आते हैं तेल वाले, ये तो बिल्कुल ही बंद हो गया। अब पीछे तेल है कंपनी में, लेकिन सप्लाई जहाँ पे पंपों में नहीं हो रही है, इसी वजह से थोड़ा परेशानी आ रही पंप पर। लोग भी इसीलिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी उनको किसी पंप में नहीं मिलता, तो जहाँ पर थोड़ा होगा वहाँ आएंगे वो। See, they are saying that the people, those who basically not getting fuel, on the petrol pumps, they are basically rushing to the others so that they can, get it filled. Let's speak to some other people. आपने भरवा लिया तेल? जी भरवा। क्या बता क्या रहे हैं? बोल रहे हैं स्ट्राइक है, पता नहीं क्या है। तो फिर आपने फुल करा लिया टैंक? फुल करा लिया, क्या हमें दूध लेकर जाना तो परेशानी है। It's an initial time when petrol and diesel crisis has started, but because of the shortage of petrol and diesel in the coming day, what will happen if this strike will not be cancelled or some decision will be taken, then other crises will erupt, like the shortage of food items, vegetables, because if transport will hamper, then there will be nothing on the shops, and that's why there are chances that people will suffer because of the petrol crisis in other items as well. With Bunty D. Rajesh and News X, Jammu. कानून को लेकर के ड्राइवर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर है। हम लक्सर ट्रक यूनियन पर मौजूद हैं और देख सकते हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको, यहाँ ट्रक यूनियन की आड़ है। यहाँ पर जो परिचालक है वो भी इकट्ठा हो रखे हैं, और जो अपने अपने वाहन है वो भी इन्होंने आड़ में लगा करके हड़ताल शुरू कर दी है। ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। इलियास जी, क्या है इस कानून में ऐसा जो विरोध चल रहा है? भाई देखो, ड्राइवर सही चल रहा है अपनी जगह, और जो लोग ये दारू पीते हुए ठाली फिर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी से खुद भी दुखी हैं और उसके घर के भी दुखी हैं, इसमें पी रहे हैं, और वो पी कर आगे गाड़ी के नीचे 10 लाख रुपए मिलेंगे, ड्राइवर 10 साल के लिए सजा हो जाएगी, उसके बच्चे क्या खाएंगे? आपका क्या नाम है?
संजय कुमार जी। क्या है इस कानून में? इस कानून में सारी ही गलत है भाई जी। क्या गलत है? गलत एक तो सजा है, दूसरा जुर्माना है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, कुछ ऐसी हो जाती है तो फिर भी हमें जो क्या नाम सजा है और हेल्प है वो पैसे हैं। जैसे नशेड़ी आदमी है या कोई अपना दारू वाले आदमी है या गाड़ी के नीचे आके घुसेंगे, मरेंगे और ड्राइवर सीट पड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलसाद है। दिलसाद, अगर कानून वापस नहीं होता फिर क्या करोगे? फिर छोड़ देंगे जी हम इस काम को। तो मजदूरी करेंगे, जाएगा हमारे घर वाले कहीं दूसरे के यहाँ जाएंगे, वो किसके बर्तन मान देगी, जाके कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? कौन देगी उन्हें खाना? वो सरकार देगी का गारंटी लो सरकार। 10 साल तक हम जेल में देंगे, हमारे बच्चे सरकार करेगी, हम जेल में रह लगे और क्या। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है आक्रोश भारी है और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जो इस समय कानून में जुर्माना और जो सज़ा कहीं ना कहीं पारित की गई है वो बहुत ज़्यादा है। इसी को लेकर के नाराज़ हैं और आने वाले टाइम में, यानी कि आज हड़ताल का दूसरा दिन है, अभी कितने दिन और हड़ताल चलेगी? क्या सरकार इस कानून को वापस लेगी या इसी तरीके से इन परिचालकों की हड़ताल जारी रहेगी? कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, इंडिया न्यूज, बक्सर। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक यूनियंस की स्ट्राइक के बाद ये आलम चंडीगढ़ के तमाम पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल खत्म हो गया है। ये जो कतारें आप देख रहे हैं ये इसलिए यहाँ पर हैं कि अमूमन सुबह रोज़ाना कर्मचारी, ट्रैवल करने वाले लोग यहीं से तेल डलवाकर जो है वो चंडीगढ़ से निकलते हैं, लेकिन आज जो है ये मुलाजिम बाहर खड़े होकर सभी को बाहर से ही बेरंग लौटा रहे हैं, खाली टंकियों के साथ लौटा रहे हैं। तो ऐसे में ये आलम तमाम चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप्स पर है और यही इसी तरह के पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं और पेट्रोल पंप्स के भीतर जाने वाले रास्ते जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रक यूनियंस की हड़ताल के बाद लगातार चाहे वो पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो, चाहे मंडियों में सब्जी की सप्लाई हो, वो तमाम काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ का नज़ारा कि किस तरह से जो लोग हैं वो पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचकर लोगों से, इन कर्मचारियों से ये पूछ रहे हैं कि क्या पेट्रोल है। तो यहाँ पर साफ इनकार जो है वो इन लोगों की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आलम जो है ना केवल चंडीगढ़ बल्कि पंजाब, हरियाणा के तमाम इलाकों में इसी तरह का देखने को मिल रहा है और यही आलम जो है वो बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस कानून के विरोध में ट्रक यूनियंस की ओर से हड़ताल तो कॉल की गई है, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें हैं यानी कि पेट्रोल और डीजल जो जिसका आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर जो है क्या कुछ निर्णय जो है वो केंद्र सरकार की ओर से लिया जाता है? क्या ट्रक यूनियंस के साथ में कोई बातचीत की जाती है? क्योंकि पीछे से एक सप्लाई और डिमांड का जो खेल रहता है, मांग और आपूर्ति का जो खेल रहता है, उसकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो है पूरी तरह से चरमराती दिखाई दे रही है, ना केवल चंडीगढ़ में बल्कि बाकी राज्यों में भी। ऐसे में तेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये पेट्रोल पंप के जितने टैंकर्स यहाँ पर हैं वो पूरी तरह से ड्राइड अप हैं। ये कर्मचारी जो हैं वो आज सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि नोज़ल छोड़कर इन बैरिकेड्स पर खड़े होकर जो लोग तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स के बाहर पहुंच रहे हैं उन्हें रोककर ये कहा जाए कि आज पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो चुका है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। देश में नए हिट एंड रन का कानून जो है लागू हुआ है, जिसके बाद से लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में जो ट्रांसपोर्टर हैं और जो चालक हैं उनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। साल के पहले दिन ही देश के कई हिस्सों में हड़ताल देखने को मिला, हालांकि यात्री भी इस दौरान काफी परेशान रहे। वहीं इसी कड़ी में आज अहले सुबह बक्सर के सिंडिकेट पर जो ट्रक चालक हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो यहाँ पर हड़ताल के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो चालक हैं ट्रक के, वो यहाँ पर हैं। आइए इनसे जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मांगे हैं इन लोगों की, क्यों ये लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का मांग वही है जो मांग सरकार, केंद्र सरकार जो किए हैं वो उसको वापस लिया जाए। हम लोग के पास 7 लाख रुपया नहीं है, ना 7 लाख रुपया देंगे, और देंगे तो 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे? 2,000 का नौकरी करते वो भी गाड़ी मालिक नहीं दे पाते हैं हम लोग के पास। तो आप आज सुबह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे? हाँ, सुबह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं? गाड़ी नहीं चला, गाड़ी खड़ा किए हम लोग। 3 दिन से खड़े हैं। 3 दिन से गाड़ी खड़ा है मेरा। गाड़ी लोड करके खड़े हैं? तो सर लोड करके खड़े हैं? गाड़ी हम लोग लोड करके खड़े हैं। गाड़ी वहाँ पर धराई है, डुमराव में जाम है। दानापुर कहाँ जाम किए हैं आप लोग? आप लोग यूनियन कहाँ जाम किया है? हम लोग यूनियन भारत का हर स्टेट में जाम है। आप पता करिए, भारत हर स्टेट में जाम है। बट ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट यहाँ पर कर देना तो यहाँ पर ड्राइवर खा नहीं रहेगा, गाड़ी लेकर और रौनते चलेगा।
फिर वो रोकेगा ना उसको, जहाँ वो पहले तो था कि अभी एक्सीडेंट कर दिए तो थाने में जाकर गाड़ी लगा देंगे या पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगा दिए, ड्राइवर बच जाएगा। लेकिन वो अभी भी नियम हट गया ना, अब ये नियम रहेगा तो ये ऐसा ड्राइवर नहीं रहेगा, वो बचने के लिए कहीं भागता रहेगा अपना। कानून से आप लोग नाराज हैं? कानून से ये जो कानून लगाया गया है अमित शाह जी ने, इनको हटा दें और जो पहले था वही ठीक है, वही चलेगा। यात्रियों को भी तो परेशानी हो रही है, यात्रियों को बहुत परेशानी है और जो ट्रांसपोर्टर है वो भी बहुत परेशान है। इससे आप लोग नहीं सोचेंगे यात्री को परेशानी हो रही है, आप लोग चक्का जाम किए हैं तो? बहुत से परेशानी है, यात्रियों को तो बहुत परेशानी है। अभी जाकर देखे स्टेशन कितना यात्री खड़े हैं, ये भरौली चले जाइए तो एक भी गाड़ी नहीं जा रही है वहाँ पर तो। अब ट्रक चालक हैं? हाँ, हम लोग सब यहाँ पर जितने भी है बहुत से ये ट्रक चालक है, यहाँ पर देखिए ट्रक लगा कर खड़े हैं हम लोग। सूर्य कुमार यादव। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर जो ट्रक चालक है उन लोगों ने बताया कि ये लोग जो है नए कानून के विरोध में यहाँ पर हड़ताल पर उतरे हुए हैं और तब तक इनका हड़ताल नहीं टूटेगा जब तक सरकार जो है इनकी मांगे पूरी नहीं करती है। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.